Please come. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. बैठिए. थैंक यू सर. Yes, sir. Sir, I am Ratnesh Tiwari. I am basically from Bhopal district. I have completed my schooling from Saraswati Vidya Mandir, Piplani, Bhopal, and then I completed my BTech from Manit, Bhopal in Electronics and Communication Engineering branch, and then I completed my MTech from IIT Kanpur in RF Micro and Photonics specialization. And presently, from last more than 4 years, presently I am working under CAG in Indian Audit and Account Department as an assistant audit officer, sir. And my father is also working in ITI as a training officer, sir, presently. So you are a student of electronics and telecommunications. So I think you must have done something. What are fundamental knowledge of electronics? What is the FM? Sir, FM stands for frequency modulation, sir. Yes. And in frequency modulation, we try to modulate our the carrier signal frequency is modulated as per the message signal, sir. And it is used in many applications like FM, and it has some advantages like the noise will has less effect on the frequency modulation. And In one line, how you describe what is it? What it is? Sir, it is used for, it is a modulation technique used to transmit a message signal from one distance to another. So what is combination? What is the difference between combination circuit and sequential circuit? सॉरी सर, मैं अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. मैंने पढ़ा है सर, लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. So what is multiplexer? Sir, multiplexer is a device to multiplex more than one signal and to transmit them in a single flow. And what is the difference between flip-flop and gates? Sir, there are few in gate we find NAND gate, NOR gate, AND gate, and in flip flop we have RS flip flop. Because something how you differentiate that is gate. Yes. Sir, the flip flop are used for storing one digit at a time, and the gates are used for multiple functions, like for getting the output one in the case of both the input is 0, and we have different situations, so we can use. Both can store the value or either one can store. Sir, flip flop can store the value. Sir, for gates, I am not sure. How many combination? Sir, one bit, sir. अच्छा, किस डिपार्टमेंट के लिए आप आए हैं? सर, जो ये पोस्ट निकली है, विज्ञापन निकला है, उसमें 2 विभाग हैं सर. एक इसमें आता है अपना एक आता है सर रोजगार एवं कौशल विभाग एवं तकनीकी कौशल. हाँ, तकनीकी शिक्षा, रोजगार कौशल एवं कौशल विकास और रोजगार निर्माण. और सर एक श्रम विभाग भी है सर. जी, श्रम विभाग भी. अच्छा, ये आपका जो स्किल डेवलपमेंट के लिए यदि आपको एमपी गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजर अपॉइंट किया जाए तो आप एमपी गवर्नमेंट को क्या एडवाइस देंगे कि स्किल डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या काम किए जा सकते हैं? यस सर. सर, बेसिकली हम जो है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक इंडस्ट्री लिंकेजेस की जरूरत है. तो इसलिए सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जो डिमांड है इंडस्ट्रीज की, उससे जो है उससे पूरी की जाए और उसके हिसाब से ही बच्चों का एडमिशन लिया जाए. साथ ही साथ सर एक और जो सेक्टर स्किल काउंसिल जो बनती है,
हम कोशिश करेंगे कि जो सेक्टर स्किल काउंसिल जो कि इंडस्ट्री बेस्ड एक सेटअप है, उनको भी जो हम इन्वॉल्व करें और उनको जो है उनको भी एक इनपुट देने के लिए हम मदद लें उनकी। और साथ ही साथ सर उसके बाद फिर प्लेसमेंट को हमको बेहतर करना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्टर हैं, जैसे कि हमारे महिलाएं हैं, दिव्यांगजन भाईजन हैं और जो एस टी कम्युनिटी के लोग हैं, उन सभी भाइयों को जो है हमको जो है आईटीआई में उनका भी जो योगदान है वो पार्टिसिपेशन जो है बढ़वाना है सर। अच्छा, जो आईटीआई है एक, उसको ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ में क्या मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है क्या, या उसको इस तरह से डेवलप किया जा सकता है क्या? Sir, with the help of industry, we can set up it for making some small products like very basic product. But sir, for manufacturing, we need high precision tools and also the ambience, complete ambience. And sir, so completely we cannot use, but sir, we can have a little setup where we can train the people and they will go to the industries and they will Okay. manufacture the product. एमएसएमई में आपका जो आईटीआई है वो किस तरह से हेल्प कर सकता है? सर मैं थोड़ा समय ले सकता हूँ जी जी बिल्कुल। यस सर, थैंक यू सर। यस सर। सर एमएसएमई में जो हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको जो है उसको डेवलप करने के लिए जो है हमारा आईटीआई जो है वो मदद कर सकता है। कई तरीके की सॉफ्ट स्किल होती हैं जो जरूरी होती हैं, उसके लिए भी जो है हमारा आईटीआई जो है मदद कर सकता है। साथ ही साथ सर जो है मुझे लगता है कि हमारे आईटीआई में जो है अलग तरीके एक एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर जो है वो बनाया जा सकता है और जो कि बच्चों को ये गाइड करेगा कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया है या फिर मेक इन इंडिया है। और साथ ही साथ जो उनको एक फाइनेंशियल कैपिटल की जरूरत होती है उसके लिए भी सर जो है आईटीआई जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर बना के उनकी मदद कर सकता है। स्टार्टअप इंडिया के बारे में कुछ बताएं। यस सर। सर स्टार्टअप इंडिया एक भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है जिसके अंतर्गत उन्हें जो नए उद्यमी सोच के लोग हैं उनको जो है कई तरीके के बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे कि टैक्स बेनिफिट। साथ ही साथ उनको जो है उनको अगर किस तरीके का ऋण चाहिए तो ऋण भी दिया जाता है और उनको जो है उनको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है बेहतर करने के लिए सर उनको जो है कई तरीके के जो है सहूलियत दी गई है कि ऑनलाइन उनको रजिस्ट्रेशन करना है और वो ऑनलाइन सारी प्रक्रिया करके जो है अपना जो सेटअप है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं सर। अच्छा, किसी कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? यस सर। सर उसके लिए तो एक अपने को टैन की जरूरत होती है सर, और सर उसके साथ साथ सर जितना मैं याद कर पा रहा हूँ सर उनका एक पैन कार्ड की जगह वो टैन लगा सकते हैं। और दूसरा सर कोई एक ओनर होगा तो ओनरशिप के लिए कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे कि अगर जॉइंट वेंचर है या कौन कौन उसमें पार्टनरशिप में है तो उसके। अच्छा, किसी भी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होना चाहिए? सर एक सिंगल कंपनी भी होती है जिसमें 1 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम सर 2 होने चाहिए सर। और एक पब्लिक कंपनी के लिए सर 7 है शायद से कंपनीज एक्ट में सर, जी। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ लेकिन 7 शायद से है सर। ठीक सर। सर गेट तो सर क्वालिफाई किया था। जो रिसर्च प्रोजेक्ट सर आयरलैंड वाला। हाँ यस सर। सर बेसिकली जो है एक जब मैंने अपना एमटेक कंप्लीट किया तो उसके बाद जो है मुझे साइंस फाउंडेशन आयरलैंड के द्वारा जो है सेलेक्ट किया गया था, जिसमें जो है एक रिसर्च प्रोजेक्ट था सर। उसको पूरा करने के लिए जो है सर मैं आयरलैंड गया था और वहाँ पे 3 महीने रह के मैंने काम। प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, क्या किया था हमने? सर वहाँ पर बेसिकली वो एक SQUID एक उनके पास एक लैब थी, हाँ। उसमें उनको जो है असिस्टेंस चाहिए था एक छोटे से काम के लिए। क्या काम था? सर एक लैब व्यू मॉड्यूल बनवाना था सर। अच्छा। उनको बेसिकली क्या है कि उनके पास एक लैब है जिसमें वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को जो है उसकी रजिस्टिविटी कैलकुलेट करते थे सर। गुड। तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था कि उनको एक इंटरफेसिंग तैयार करवाना था जिसमें वो जो मटेरियल रखा है उसको जो है उसका जो डेटा है रेजिस्टेंस का वो मल्टीमीटर के थ्रू जो है फैच कर सके, उसको स्टोर कर सके और बाद में अगर एनालिसिस की जरूरत पड़े तो उसको यूज कर सके। तो एक LabVIEW एक सॉफ्टवेयर होता है सर, उसमें एक मैंने मॉड्यूल तैयार किया था और उसकी मदद से उन्होंने जो है ये किया। चीज। चलिए ठीक है, बढ़िया। आपको नहीं लगता कि आईटीआई में जो अभी कोर्स चल रहे हैं ये आउटडेटेड हो चुके हैं? क्योंकि बीई में तो हम बीआई पे बात कर रहे हैं, आईटीआई में कर रहे हैं हार्डवेयर टाइपिंग और इन सब पे।
तो आप कैसे प्लेसमेंट देंगे? अभी आपने बोला ना कि प्लेसमेंट में मैं काम करूंगा, मान लीजिए आप उप संचालक बन गए या सहायक संचालक बन गए, तो कैसे आप इस पे प्लेसमेंट को कैसे बढ़ाएंगे? यस सर। सर प्लेसमेंट को बढ़ाने के लिए हमें जो है पहले तो अपने कोर्स को जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ हमें जो उनको ट्रेनिंग देना क्या है। क्या चेंज करेंगे कोर्स में कि आपका इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो जाए हमारा कोर्स आईटीआई का? सर जैसे कि अभी प्रेजेंट में हमारे पास जो है अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जो है, जैसे मैं चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ तो उसके बारे में बता रहा हूँ। हमारी भारत सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज पे काफी फोकस कर रही सर है। कहाँ पे है एचओडी? सर मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हूँ सर। मैंने बीटेक किया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जो सर इलेक्ट्रॉनिक मेरा जनरल क्वेश्चन है कि जो आईटीआई के कोर्सेज हैं वो बहुत मुझे आउटडेटेड लगते हैं। जी सर। अब आप उस या तो आईटीआई में प्रिंसिपल बनेंगे, जी। सहायक संचालक बनेंगे, उप संचालक बनेंगे, तो आपको एक पूरा बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है कि आप उनकी करेक्शन करके और उसको इंडस्ट्री ओरिएंटेड बना। जी सर। जी सर। तो आप क्या कदम सोचते हैं कि ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चे प्लेस हो जाए, क्योंकि बी के बच्चे प्लेस नहीं होते हैं। जी सर। बिल्कुल सर। सर उसके लिए सबसे पहले तो एक कम्युनिकेशन जो है वो मैं इंडस्ट्री के साथ वो बिठाऊंगा और उनको सबको एक मीटिंग में बुलाऊंगा। वहां से उनसे पूछूंगा कि आप किस किस सेक्टर के जो है बच्चे हो। आप मुझे समझ नहीं पा रहे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप बच्चों में क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट करेंगे कि वो इंडस्ट्री के काम के लायक हैं? ओके सर। है ना, वो कम्युनिकेशन करना तो आपकी संस्था आपके और समझ गया। सॉरी सर, थोड़ा लेट लगा मेरे को। जी सर, एक तो पहली बात उन्हें जो मशीनें जो यूज हो रही हैं सर, मैं कोशिश करूंगा कि जो मशीनें एडवांस मशीनें लाके एडवांस मशीनों पे उनको ट्रेनिंग दिलवाऊं और साथ ही साथ उनको कोशिश करूं कि थ्योरी पार्ट को कम करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट पे फोकस ज्यादा करूं, जिससे उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ सके और उसके बाद वो प्रैक्टिकल नॉलेज जब उनका बढ़ेगा तो इंडस्ट्री में जो है काम करने के लिए बेहतर स्किल रखेंगे और उसके बाद उनका प्लेसमेंट सर उससे सुधार होगा सर। अच्छा, चलिए कंप्यूटर की बात करें। जी सर। वो होता है कंप्यूटर में। ऑपरेटिंग सिस्टम सर। यस यस तो दो तरह के OS आ गए हैं, 32 बिट और 64 बिट। यस सर। क्या डिफरेंस है बेसिक? सर एग्जैक्टली 64 और 32 का क्या सीन है, क्यों ऐसा होगा कि 32 बिट बनाया और 64 बिट बनाया, हमने 128 बिट क्यों नहीं बनाया? OS सर मुझे पूरी जानकारी नहीं है सर, कोई नहीं। लेकिन सर इतना ही पता है कि जो 64 बिट होता है वो एक बार में 64 बिट को प्रोसेस कर पाता है और 32 बिट वाला सिर्फ 30। 64 बिट क्या मतलब? सर वो 2 रेज़ टू द पावर 64 बिट 2 रेज़ टू द पावर 64, ये तो सर। इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? सर मैं सर नहीं सोच पा, सॉरी सर, नहीं पता मुझे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। 32 बिट सिस्टम है तो मैक्सिमम हम 4 GB तक की मेमोरी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2s टू द पावर 32 होगा तो उसकी वैल्यू आती 4 जी 264 बिट होगा तो 128 तक। तो 128 GB को अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट चाहिए तो हम 64, तो हम उस तरफ जा रहे हैं, वो 64। थैंक यू सर, थैंक यू आपने जैसे अभी बात किया है, तो इसमें एक पार्ट है हमारे पास लैन वैन वगैरह का। जी सर। तो इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे टीसीपी आईपी होते हैं, आईपी देते होंगे, आईपी दिए कभी? सॉरी सर, उस बारे में जानकारी नहीं है मुझे। प्रोटोकॉल सर प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसके आधार पे जो है वो मतलब कार्य करते हैं सिस्टम्स। डेफिनेटली आपको ये होगा कि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए जो जी जी यस सर। वो ऐसे लिए पढ़ेंगे। सर पढ़ा है सर, लेकिन 7 लेयर, यस सर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, लेकिन सर एग्जैक्टली These are part of your SLAM. आप क्या डेटा लिंक लेयर में 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, मैं बताता हूँ, टीसीपी और यूडीपी। ओके सर। इनकी क्या डिफरेंस? सॉरी सर, मैं इस बारे में नहीं पढ़ा हूँ सर। जी सर। आप ओएस के जो बच्चे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, यस सर। इसमें कर्नल करके पार्ट होता है, यस सर। क्या है? सर कर्नल जो है वो बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की लिंक है सर। उनको जो है उनको जो कम्युनिकेशन जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, वो सर वो कर्नल। कितने टाइप के होते हैं? सॉरी सर, इस बारे में मुझे नहीं पता सर। आप जैसे मैं कैपिटल वगैरह यूज करते हैं जी सर। तो आप कहते हो कि बहुत उस पर कोई हमारा विंडो का सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता? सर कर्नल, ओके सर। क्योंकि हम कर्नल स्पेसिफिक हो गए, तो हमारा जो वेब ओएस है जी सर। वो हमारा कर्नल स्पेसिफिक है, जिसमें मिक्स हमने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी है। ओके तो सर। आपसे पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट में क्या है?
ओके, थैंक यू। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम यस सर। सर जो हमारी मशीन है वो और यूजर। व्हाट इज बूटिंग? सर If I say booting, यस if I say booting, what is the in terms of electronic telecommunication student, you must know what is the booting. सर बूटिंग जो है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की एक प्रक्रिया है सर, और इसमें सर शायद से एक से ज़्यादा तरीके की बूटिंग होती हैं सर। What it does, please. ये तो प्रोसेस तो है तो स्टार्ट करने की। Somebody say that if I press the button for to start the process and it start the process for booting, what it means, what it internally does. सर जो हमारा पावर है जो वो बाकी कंपोनेंट तक सर पहुंचने लगता है, No, और basically it reloads your operating system. Operating system is always in the second. यस सर, यस सर, And what is that? That is यस सर, यस सर। and which is the fastest memory? Cache. कैश मेमोरी सर। I am giving that options. The RAM, the secondary memory, cache, register. अच्छा एक बात बता दीजिए सर, वो बीच में प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती सर रैम को अपन प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं सर। है और एग्जांपल कोई? रोम भी नहीं, रोम भी है सर। सॉरी सर, और सेकेंडरी मेमोरी? सर जो हम हार्ड डिस्क सर हमारी सेकेंडरी मेमोरी है सर। सेकेंडरी मेमोरी। सर तो फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी में कौन से आगे रैम एंड कैश? ओ कैश, ओके। And ROM. सर रोम तो सर रीड ओनली मेमोरी होती है सर। Primary है, secondary है. किसका फॉर्म? Primary है, secondary है. प्राइमरी सेकेंडरी? Secondary है कुछ और है. सर वो प्राइमरी होगी। Primary. Yes, तो फिर कैसे के फॉर्म में रहती है? ओके So सर। RAM, ROM, okay, all these are the primary. Which is the fastest memory? ROM, secondary memory, cache, and register. सर कैश, No, register is the part of even the part of hard disk for the memory. सॉरी सर। So what is the smallest unit of memory? बिट सर, No, bit is the निबल, सॉरी सर। सत्या जी दो तरह के आईपी हम यूज करते हैं, IP4, IP6। यस क्या है? सर, सॉरी सर, इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है सर मुझे, लेकिन सर 6 और 4 जो है वो कुछ बिट से ही रिलेटेड है सर। क्या है? 2 raised to the power 4 and 2 raised to the power 6। एड्रेस जो है सर एड्रेस लाइन से संबंधित कुछ है सर। सॉरी सर, मैं नहीं करेक्ट कर पा रहा। कोई यस सर। अच्छा, अब आप मैं मान लीजिए आपको संचालित कर रहे हैं जी सर। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप 3 ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स कीजिए जो आपके मन में, जी सर। जो आपको लगे ये मेरे अंदर मुझे अवसर मिला है, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी आई है, मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर दूं किसी संस्था के लिए। कौन से 3 कोर्स? यस सर। सर एक तो मैं ड्रोन टेक्नोलॉजी को जो है, ड्रोन और रोबोटिक्स को जो है मैं शुरू करना चाहूँगा सर। दूसरा सर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी आज की डेट में काफ़ी हाईटेक मतलब न्यूज़ में रह रहा है, उसके बारे में भी कुछ अगर बेसिक हम दे सकें बच्चों को। और तीसरा सर मैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में जो फैब्रिकेशन होता है सर, उसके लिए जो है बेसिक जो नॉलेज है वो बच्चों को देना शुरू करना आपको लगता है कि 10th का बच्चा जो हमारे पास आता है वो सेमीकंडक्टर को समझ पाएगा? सर हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ ये तो सही बात है कि उसको उसके लिए समझना काफ़ी मुश्किल है सर सेमीकंडक्टर को, लेकिन सर जो हमारे यहाँ अटल टिंकरिंग लैब जो बन रही है सर स्कूलों में, उनके थ्रू हम एक सर एक सिमुलेशन के द्वारा या फिर एक वीडियो के फॉर्म में उनको एक हम बेसिक नॉलेज दे सकते हैं। उसके बाद सर उनको जब वो बड़े होंगे तो उनके पास से अगर बेसिक नॉलेज रहेगा तो वो उसके ऊपर सब बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है क्या कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं आपको एज ए ग्रुप संचालक या साइट संचालक या प्रिंसिपल के रूप में ITI में, क्योंकि आपने अभी बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया यस सर, है ना, यस क्योंकि अकाउंटिंग वगैरह बहुत कूल जॉब होते हैं। यस आपको क्या लगता है कैसे चैलेंजेस आने वाले हैं आपके सामने, जैसे कोई 5 चैलेंजेस आप काउंटर कर सकते हैं? सर थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ मैं अगर आपके बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। हाँ। सर मैं 3 याद कर पा रहा हूँ सर। आप बता दीजिए, 3 बता दीजिए। सर एक तो ये चूंकि ऐसा हो सकता है कि जो हमारा डायरेक्टरेट है और जो हमारा मिनिस्ट्री है वहाँ से जो है एक कुछ डेडलाइन वाले वर्क आ सकते हैं जो कि मेरे लिए चैलेंजिंग हो सकता है कि हमें इस डेडलाइन पे कार्य करना है। दूसरा सर जो है हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं सर वो काफ़ी लिमिटेड है सर,
जैसे कि मशीन्स हमारे पास आउटडेटेड हैं, तो उसको जो है सर एक वो भी एक मेरे सामने चैलेंज रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का सर। और तीसरा सर जो है वो मुझे लगता है कि जो एक छवि है आईटीआई की, जैसा उसको एक सेकेंडरी प्रोफेशन मतलब स्किल एक्वायर करने के लिए एक सेकेंडरी वो माना जाता है, तो मुझे लगता है सर एक जो छवि वाली चीज है सर उसको भी मुझे सुधारने का सर एक चैलेंज रहेगा। अभी आप केवल संचार के कारण अच्छा यस धन और वित्त में क्या अंतर हो? धन और वित्त दोनों में मनी एंड फाइनेंस सर। बेसिक एक लाइन समझ में सर मैं एक 10 सेकंड ले सकता हूं? आ रहा है। सर मैं मुझे पूरा एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैं सोच पा रहा हूँ सर उसमें सर ये है कि जो मनी है सर वो एक जो हमारे पास कैश है सर उससे उसके बारे में बात होती है। फाइनेंस में सर हम उसकी इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी और बाकी चीज़ों का भी सर एक ब्रॉड टर्म है सर फाइनेंस। हमारे जब बजट पेश होता है तो दो तरह के बिल पेश होते हैं, यस क्योंकि आप उस मंत्रालय में तो आपको तो बहुत अच्छे से Yes, पता होगा, yes. वित्त विधेयक और धन विधेयक जी सर पास होते हैं। जी सर। वहां पे क्या डिफरेंस होता है, कब वित्त विधेयक पास करते हैं और धन विधेयक पास करते हैं? ये सर सर जो हमारे यहाँ अच्छा, कोई दिक्कत सर हमारे यहाँ जो आर्टिकल 110 है उसके अंदर मनी बिल जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या होता है उसमें, क्या कंटेंट्स होते हैं मनी बिल में, वो जानना चाहता हूँ। सर मनी बिल में सर सॉरी सर मैं कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सर। सर माइक रत्नेश जी, आपके जो डैब में मैं देख पा रहा हूँ आपका एक रिसर्च पेपर पुर्तगाल में पब्लिश हुआ था। अच्छा, अभी पुर्तगाल काफी न्यूज में था एक एनिमल के कारण, कौन सा एनिमल था वो? सॉरी सर मैं ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी ग्रेजुएशन किया है, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की जानते हैं आप? एफएसके जी, हाँ सर जानता तो हूँ सर। थोड़ा आप बता पाए जैसा भी आप जानते हैं। सर जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीविंग एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के एनालॉजी में डिजिटल मोड में बनाई गई है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी एफएम होता है, वैसे ही सर एफएसके जो है वो बेसिकली डिजिटल मॉड्यूलेशन की एक टेक्निक है सर। इतना ही सर। तो जो राउटर होते हैं आपके हिसाब से? नहीं पता ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा था ओएसआई लेयर के बारे में, तो कितनी होती है इसमें लेयर? सर। सर 7 लेयर होती हैं सर। ओके, सर उसके बाद हाँ 7 लेयर होती हैं, इसमें फर्स्ट होती है फिजिकल लेयर। यस तो क्या करती है फिजिकल लेयर, क्यों हम उसको फिजिकल बोलते हैं? कुछ तो उसका संबंध होगा फिजिकल वर्ल्ड से, तो क्या है फिजिकल लेयर? सॉरी सर। अच्छा चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम काफी बार कंपोनेंट्स को शोल्डर करते हैं आपस में, तो शोल्डर में करने वाला कौन सा एलिमेंट कौन सा यूज करते हैं? सर लेड एंड टिन। ठीक है, ठीक है, तो एक होता है शोल्डरिंग, एक होता है ब्रेजिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ब्रेजिंग जो होता है सर वो सोल्डरिंग से थोड़ा मजबूत। सॉरी सर मैं एक मिनट बता रहा हूँ सर। ब्रेजिंग जो होता है वो अब डिफरेंट तरीके के मेटल को अपन जब ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं तो ब्रेजिंग करते हैं। ठीक। और सोल्डरिंग सर अपन सेम तरीके। अच्छा, आपने भी सुपर कंडक्टर के बारे में बात बताई थी, आप काम भी कर चुके हैं, तो सुपर कंडक्टर की कोई पावर होती है? कुछ पावर जैसा कुछ होता है वहाँ पर, गेन या पावर सुपर कंडक्टर में? सर मुझे इतना पता है सुपर कंडक्टर के बारे में कि सुपर कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम या फिर 0 होता है, और अगर उसमें एक बार अगर एक सर्किट में अपन करंट फ्लो करा दें सर वो करंट हमेशा फ्लो करता रहेगा। उस करंट की कोई लिमिट होती है क्या? ये कि इनफाइनाइट है? नहीं सर होती है सर। जैसे कि सर अपन जो जैसे मैगलेव वगैरह में जो है यूज करते हैं सर, मैगलेव ट्रेन जो भी है उसमें सर सर करंट जो होता है सर वो 60 एम्पियर के आसपास सर रहता है। और हमें हमारे घर में सर वो जनरली पॉइंट की रेंज में रहता है, वहाँ पे सर 60 एम्पियर
की रेंज में यूज होता है सर। इसके अलावा उसमें मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं पता। ठीक है, ठीक है। आप फोन इस्तेमाल करते होंगे, इंटरनेट यूज करते होंगे, तो आप 4G इस्तेमाल करते हैं 5G? सर कभी कभी मेरे फोन में 5G आता है सर, कभी कभी 4G आता है सर। मतलब फोन 5G है आपका? यस अच्छा, तो क्या बेसिक डिफरेंस है 5G और 4G में? सर। एक तो सर बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी ठीक है। डोमेन का है, और सर साथ ही साथ जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है सर वो बदल जाती है सर। एग्जैक्टली सर मेरे को नाम नहीं पता 4G और 5G में कौन कौन सी, लेकिन सर मॉड्यूलेशन टेक्निक अपन बदल देते हैं सर। नहीं, ये तो फिर क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से डिपेंड है यस सर। और टेलीकम्युनिकेशन में, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि स्विचिंग कैसे होती है, कॉन्फ़िगर बना के और फिर 5G पे आके हम 5G पे है लीजर फॉरवर्ड पूरा होना चाहिए। जी सर। एक नेटवर्क को अगर कर रहा है कोई चीज रिसीव, तो स्विचिंग कैसे होती है सिग्नल की? सर जो मैं सोच पा रहा हूँ सर ये कि हमारे मोबाइल में दोनों तरीके के एंटीना रहते हैं, 4G सिग्नल को रिसीव करने के और 5G सिग्नल को भी रिसीव करने के लिए। दोनों फ्रिक्वेंसी बैंड जो है वो रिसीव कर सकता है, और सर इसीलिए सर इतना ही सोच पा रहा हूँ सर। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। सर आपने एआई का नाम लिया, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। आजकल एक प्रोजेक्ट बहुत न्यूज़ में चल रहा है, स्टारगेट। यस हाँ, तो क्या है ये स्टारगेट? सर स्टारगेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा जो है एक कई लोगों को मिला के जो है बनाया गया एक एसोसिएशन है, जिसमें उनका उनका उद्देश्य ये है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अलग स्तर तक ले जाना चाहते हैं और उसे मानव उपयोग के लिए जो है और डेवलप करना चाहते हैं। और सर इससे ज़्यादा सर नहीं पता सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है। आपने वाईफाई इस्तेमाल किया होगा। यस 2011 या 13 में लाईफाई बहुत न्यूज़ में आ गया था। यस तो लाईफाई ऐसा क्या है कि लाईफाई उस समय टेस्टेड हो गया, सारी चीज़ें सब कुछ हो गई, लेकिन अभी तक उसको अभी तक आ नहीं पाया है इस्तेमाल में? क्या रीज़न है, फेल क्यों है? यस सर। सर जो लाइफाई है सर वो बेसिकली लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने पे ही ट्रांसफर कर पाता है डेटा को। तो सर अगर उसके साथ दिक्कत ये है कि अगर वॉल्स वगैरह आती है, जैसे वाईफाई में क्या है सर कि अगर वॉल वगैरह है तो वो उसको पार करके जो है हम सिग्नल जो है रिसीव कर पाते हैं, लेकिन लाइफाई के लिए सर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने की आवश्यकता है सर। तो इसीलिए सर वो जो है इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाया कि हम हर समय वो लाइट का कॉन्टेक्ट जो है सर वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, और उसके लिए सर वो मुझे नहीं। ठीक। तो इग्निश आज आपने न्यूज़ में पढ़ा था? सॉरी सर, आज सुबह मैं 6 बजे निकला था घर से, तो सर मैं न्यूज़पेपर आज का नहीं पढ़ पाया सर। कल ठीक है। नहीं सर, कल का पढ़ा था सर, आज का नहीं पढ़ा। सर एक कल की इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़ी थी सर कि जो पातालकोट है उसमें जो है उसमें वेलनेस स्पॉट के रूप में उसको जो है उसको डेवलप करने के लिए अपनी मध्य प्रदेश शासन जो है वो प्रयासरत है। और ये पातालकोट कहाँ पर है? सर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सर पड़ता है सर। अच्छा, कौन सा यानी कि ब्लॉक है? ब्लॉक में कौन सी जनजाति है? सर गोंड जनजाति भारी। भारी, सॉरी सर, भारी है सर। ठीक है। यस What is port? What is port? PORT. यस सर। सर जहाँ पर अपन जो है डिवाइसेस को जो हमारी केबल्स आती हैं सर जहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं सर वही। हम तो किसी बोर्ड पे अगर वन वाइट लगा हो तो सिम हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन like in that. सॉरी सर मेरे को। Port is a device that communicates with the peripheral. यस सर यस We have multiple ports, in computer, but data is only communicated through USB ports. Why? What is the difference between all other port and the USB port? That only data is carried by the only USB port. It means we have multiple ports. Once you switch on, it for the electricity, it means for mouse and any other thing. But if it is not USB port, we cannot communicate, cannot insert the data. Why? सॉरी सर। Have you ever know what is for the operating system? यस It is responsible for carrying the data. Yes. What is the full form of USB? यूनिवर्सल सीरियल Bus is. So it basically connect with the operating system so that डेटा कैन बी। data can be carried by the buses. So that थैंक यू एकदम से होते सर।
थोड़ा सा आप है ना इम्प्रूवमेंट है ना, और बेसिकली इसमें जो लिखा है तो आप पढ़ ही रहे हैं। और कहाँ खत्म करना है इस पे भी आप फोकस करो, क्योंकि आप जो कर रहे हो मुझे किस तरह से मतलब आपको यहाँ पे आप आईआईटी से पास हो गए, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप आपका टेक्नीशियन बन गए। इसको मुझे रिसर्च पे बहुत करना पड़ेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा रिसर्च को आप तैयार करिएगा उसको। सर मैंने रिसर्च को तो तैयार किया है, लेकिन वो थोड़ा सा मेरा इंट्रो बड़ा हो रहा था सर, तो इसीलिए मैंने उस रिसर्च पेपर तो को आप उसमें आप इससे हाँ ये वाला इंप्रूव में थोड़ा सा कंटेंट कम करके उसको लाइए रिसर्च पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस पद के लिए जाते हैं वहाँ पे हमें एकेडमिशियन क्लियर करना है अपने आप। जी जी है सर ना, जी सर अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी हमें जब हम उनके काम के दो तरीके से हैं। जी एक तो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप क्या स्किल इम्प्रूव करें स्टूडेंट्स में, जी। क्योंकि आपको ज्यादा वहाँ ऑप्शन नहीं मिलने वाले कि आप उनको पूरा सिस्टम चेंज करें। बिल्कुल सर है? जी सर आप एआई सेमीकंडक्टर इसके लिए 50 परमिशन लगती है, जी सर तो आप ये कर सकते हैं कि तो बर्ड सिखा रहा हूँ तो उसमें मैं आपको एक्सेल बहुत अच्छे से सिखा दूँ, जी सर जो आपको डेटा साइंस में काम जी है। सर तो जो टूल है उन्हीं के साथ काम करना है, इस पे हमें सोच में जाना पड़ेगा। देखो यार, क्योंकि पद छोटे हैं, जी सर आपके पद के सामने एक चीज लिखी हुई है असाइन, ये क्या है, जी सर क्या है, सर और उसके नीचे एक लाइन और लिखी हुई है जो मैंने एड में पढ़ा था सर, कि ये 2 साल की परीक्षा पे, तो परीक्षा दे रहे हैं तो मुझे असाइन कैसे मांग, इसका मतलब वो ऐसे बंदे ढूंढ रहे हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस हो, आगे उनको रेगुलर कर सके। आगे रेगुलर कर सके। तो आपको भरपूर टाइम मिलने वाला है, बस ऐसा है कि आप उनके काम के वो तभी हो पाएंगे कि हम स्टूडेंट के इसकी सोचें एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप प्लान, अभी आपके पास टाइम है 2-4 दिन में भी है जी तो उस पर जरूर आप, ठीक है, कोई नहीं आपसे नॉलेज पूछना है, आप आईआईटी से पास आउट हैं, बहुत अच्छा आप पहले एकेडमिक कोर्स कर रहे हैं, जी है ना, थोड़ा सा बेसिक में प्रैक्टिकलिटी की बात है, जैसे आईपीवी4 क्या होता है, आईपी6 क्या होता है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें है ना, तो बहुत बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। जी ये 2-3 मेरे तरफ से आपका कब है? सर 31st कोई फर्स्ट डे ही है सर। अच्छा, फर्स्ट डे है आपका। सर अनरिजर्व का सर 2 ही दिन है, फर्स्ट को और फिर थर्ड या फोर्थ को, बस 2 ही दिन है, तो मेरा 31st को ही पड़ गया है सर। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है। One more suggestion from my side is that whatever is prescribed in your syllabus, at least to find out the knowledge of that one. At least the definition. Because LAN, WAN, router, switches, operating system, these are the part of your syllabus. Yes. I think an individual can expect the little knowledge of this. And you are not aware of that. Yes. So, and basic fundamental electronics like gate condition, you are very good, but I think you need to be compact that so Yes. because we are expecting from the questions at the fundamental level. Yes. At least that is prescribed, so you must be aware of. Yes. Second thing, while answering the questions, you are only contacted, I think the only the panelist of that one that I asked the question. Yes, sir. You are not by contacted. Yes, That one I contacted for any questions. Yes, sir. That is You not. are too clear and too focused on that question, so you are looking at any. माइक ले लो ना। एक आप लैंग्वेज में जो स्विचिंग कर रहे हैं दोनों में, मैं सपोज करके चल रहा हूँ 50 आर पे